Good afternoon to all present here. We, on behalf of IIC Saurashtra University, welcomes you all for today's lecture on how to start up and various startup grants. Today, our eminent speaker is Mr. Dhruv Patel. Currently, he is working as an incubation manager MSME at EDIL. He is total 6 years of professional experience in the core incubation field. Mr. Dhruv Patel is also recognized with award and certificate by GTU for excellent contribution in IPR in gold category. He got first rank in the IP quiz and third rank in IP blog writing as a part of World IP Day event organized by ISERT. Now I would like to invite Dhruv Patel sir to hand over. Thank you so much, ma'am, for nice introduction. Thank you, Saurashtra University IIC team for giving me this opportunity. Ma'am, am I audible properly? Sir. Yes, sir. Thank you. Yeah. Good afternoon, all. Good afternoon, all the participants. I am Dhruv Patel, as already ma'am described my background. I would like to start my session on how to start up various startup grant. So first, first would like to start with the general introduction about the entrepreneurship, entrepreneur, and startup, what and how they will work. So first, what is entrepreneurship? So फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप जनरली क्या होता है? जब हम लोग काफी बार ये वर्ड सुनते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, नाउ व्हाट इज दिस मीन? सो एंटरप्रेन्योरशिप इज एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस or business while building and scaling it to generate a profit. So in a simple language, you are doing some business with a innovative way to make a profit. So it is entrepreneurship. The more modern entrepreneurship defined is about the transforming world by solving big problems. Sometimes in a startup we called as it to solve a problem. So to solving a big problem by innovative ways, and by that solving a problem you will generate some profit, then it will be called as an entrepreneurship or a startup. The entrepreneurial vision is defined by discovery and risk taking ability. So हम लोग जब भी बोलते हैं बिजनेस करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा. So entrepreneurship is also all about the discovery and risk taking abilities. Now more in deep, what is entrepreneur? Who is entrepreneur? So entrepreneur is defined as someone who has ability and desire to establish, administer, and succeed in a startup venture along with the risk and it to make a profit. So जो बिजनेस करना जानता है, जो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखता है और रिस्क लेके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके खुद नया बिजनेस, इनोवेटिव बिजनेस स्टार्ट करता है, it is called who is called as an entrepreneur. The base example of entrepreneurship is the starting a new business venture. So I have marked some bold word here, a new business venture, so that I will explain in later. New business venture and the entrepreneurs are often known as a source of new ideas or innovators, or a bring new idea in the market by replacing old with new invention. So यहाँ पे दो वर्ड है, one is new business venture and second the existing thing. You need to replace existing thing with the innovation. Now what is startup? Equation of startup. So you are doing some new business, you start your own new venture or new business with some innovation. It includes technology and your passion. The combination of innovation, technology, your passion, and you if you will start your new business, then it will called as in startup. Now going back to a few slide, I have mentioned replacing old with a new invention. Now what is replacing old with a new invention? We'll see with one by one examples. जब हम लोगों को पहले, कोविड के पहले, जब हम लोगों को बोला जाता था कि वेंटिलेटर, नाउ जैसे ही वेंटिलेटर वर्ड दिमाग में आता है,
एक पिक्चर सा आता है कि बड़े बड़े मशीन्स है, एक हॉस्पिटल है बड़ी जहाँ पे बड़े मशीन है, काफी सारे वायर्स लगे हुए हैं, एंड एक क्रिटिकल सिचुएशन दिमाग में आती थी कि वेंटिलेटर मतलब एक काफी अच्छा सा सेटअप है मेडिकल टर्म्स में। कोविड के बाद क्या हो गया, जैसे ही हम वेंटिलेटर बोलते हैं, वेंटिलेटर एक पोर्टेबल वेंटिलेशन मशीन जैसा हो गया, एक सूट केस ब्रीफ केस के जैसा छोटा सा वेंटिलेटर हो गया, जहाँ पे आप उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, कहीं पे भी सेटअप कर सकते हो, एंड पेशेंट को उसका यूजफुल हो सकता है। ओके, डिस्ट्रप्शन इन बुक्स, पहले काफी सारी बुक्स फिजिकल फॉर्म में आती थी, आपको परचेज करनी पड़ती है बुक्स, देन यू कैन रीड, आपको किसी को हैंड ओवर करना है तो आपको किसी को देना है बुक, इस उसको हैंडल करना एक क्रिटिकल टास्क हो जाता था। अभी बुक्स हो गया है ई बुक के फॉर्मेट में, तो ये ओल्ड टेक्नोलॉजी को न्यू टेक्नोलॉजी से डिस्टर्ब कर दिया है कि ई बुक है आपके पास, जस्ट आप मोबाइल में, आपके टैबलेट में, आपके लैपटॉप में, कहीं पे भी आप उसको पीडीएफ फॉर्म में या कोई डिजिटल फॉर्म में यूज पढ़ सकते हो। डिस्ट्रप्शन इन टैक्सी सर्विस, पहले एक टैक्सी सर्विस आपको यूज करने के लिए एक टैक्सी स्टेशन पे जाना पड़ता था, या अगर आपका लोकल एरिया है तो लोकल एरिया में कहीं पे एक टैक्सी सर्विसेज खड़ी रहती थी, जहाँ पे आपको जाना है वहां से टैक्सी सर्विस अवेल करना है। कभी कभी ऐसा होता था कि टैक्सी अवेलेबल है नहीं है, वो सारी पैरामीटर्स रहते थे। नाउ आपके पास एक डिजिटल फॉर्म ऑफ टैक्सी सर्विस हो गया है, जहाँ पे उबर ओला जैसी एप्लीकेशंस है, घर पे बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे कहीं पे भी आप टैक्सी बुक कर सकते हो। आपको वेटिंग पीरियड पता चल जाता है कि इतने टाइम पे आपके लोकेशन पे टैक्सी अवेलेबल होगा, कितना कौन से डिस्टेंस पे जाना है, कितना प्राइस होगा, वो सारा सर्विसेज आपको एट योर फिंगर टिप मिल जाता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रप्शन इन होटल, पहले आपको होटल्स पे कभी भी चेक इन करना है, उसकी फैसिलिटीज देखनी है, उसकी सर्विसेज देखनी है, तो वहां पे जाने के बाद आपको पता चलता था कि ये होटल कैसी है, उसमें क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल होगी। बट नाउ डेज यू हैव ओयो रूम्स, ओयो रूम्स में आपको सारी चीज, उसके रेटिंग, स्टार रेटिंग, सर्विस, उनकी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती है, जैसे आप पर आवर होटल बुक कर सकते हो, कुछ हाफ डे के लिए बुक कर सकते हो, आप फुल डे के लिए बुक कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको सारा होटल का एक पैरामीटर्स देखने मिल जाते हैं। ईटिंग प्लेस के लिए पहले आपको कोई भी होटल पे जाके खाना खाना है, कोई भी आप फेस्टिवल पे आप होटल पे जा रहे हो, काफ़ी सारा वेटिंग मिलता है आपको, आपको वेट करना पड़ता है क्योंकि आपको पर्टिकुलर होटल का खाना पसंद है, आपको वहाँ पे वेट करना पड़ता है। नाउ यू हैव जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा, सो विथ योर मोबाइल यू कैन ऑर्डर सेम फूड। वहाँ पे जो फूड है, जनरली हम लोग होटल में क्या प्रीफर करते हैं, होटल में जाना इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि हमें एक टेस्ट आता है, कुछ फील आता है कि होटल का खाना खाया मैंने आज। तो आपको सेम फील, सेम फूड आपको घर बैठे खाने को मिल जाता है। अभी कोई आपका ओकेशंस होता है, जैसे बर्थडे हो गया, आपका कोई स्पेशल ओकेशन हो गया, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं रहती है, आप आपके कलीग्स के साथ एट आपके वर्किंग प्लेस पे भी मंगवा के एंजॉय कर सकते हो। And last, disruption in social media. Social media, even me and you, as a younger generation, you can correlate with the disruption in social media. काफी social media नए एक्टिव आ गए, काफी सारे फीचर्स है, काफी आपको नई नई सर्विसेज सोशल मीडिया पे अवेल हो चुकी है। अर्लियर इन 2010 और अबाउट 2000 वहाँ पे कोई सोशल मीडिया बहुत कम थे, रेयर सोशल मीडिया थे। Now you have Jio, you have unlimited internet, so you can use the social media freely. So that is how the old replacement of old technology with the new technology, and you can avail the benefits of new technology. Now, what is the definition of startup by book or by law? So these are the three parameters you need to fulfill if you want to start your startup, or you have to call your business as a startup. The first, it must be registered as a private limited or LLP or registered partnership.
in India, not prior than 10 years. So earlier it was 7-year criteria, and for the biotechnology related invention, there was a 10-year criteria. But the new amendment says the registered in India not prior to 10 years. The second one is annual turnover not exceeding 100 crore in any of the financial year since incorporation of your business of your venture. So earlier it was 25 crore, but the new amendment says that the annual turnover not exceeding 100 CR in any of the financial year. And the third one is it must be working toward the innovation and development or commercialization of new product. So if you are working on the existing product or the existing things which is already available in market or already available in public source domain, then it will not fulfill in this startup definition. You can work on your product, you can work on your process or a service. So process or service driven by the technology or the intellectual property. So it is not necessary that you should work on a product. You can work on the process innovation, you can work on the service innovation or the product innovation, but you have to fulfill these three criteria. You must have to work on the innovation and technology development and commercialization part. Now which startup or which business will not fall under the startup category? That is splitting up of a new business, of a business already in existence, and reconstruction of a business already in existence. So अगर कोई आपका फैमिली बिजनेस है, आज के दिन कभी क्या होता है, a student or a person will come with us and say that we have already set up business, a family business, and we want to enjoy the benefits of startup. So how we can avail? So the existing business or a family business or a splitting up of existing business, reconstruction of existing business will not fall under the startup criteria. So now you have a clear picture about startup definition, how you can call your business as a startup. So now if you have an idea and you want to start your own startup, there are major 5 stages. And I have also mentioned about the stages, what entrepreneur does in particular stage and how it will feel. So the first stage is idea stage, where the entrepreneur does market research, competitive analysis, naming and branding. जनरली यहाँ पे क्या होता है, एक आपके पास आइडिया है, उसका मार्केट रिसर्च होता है. मार्केट रिसर्च मीन्स एग्जिस्टिंग आइडिया है कि नहीं मार्केट में, अगर सिमिलर फील्ड में या सिमिलर आइडिया पे कोई वर्क कर रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, व्हाट वी हैव डन न्यू, मतलब यूएसपी आपका क्या है, हम लोग क्या नया करने जा रहे हैं या कुछ नया क्या एड ऑन करने जा रहे हैं, वो एक मार्केट रिसर्च होता है. मार्केट रिसर्च में आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस भी आ जाता है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन और प्रोसेस बेस्ड इनोवेशन भी आ जाता है. उसके बाद कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होता है. जनरली कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में एनालिसिस होता है कि करंट एग्जिस्टिंग मार्केट में जो भी कॉम्पिटिटर्स है आपके, वो लोग क्या कर रहे हैं, आपका सॉल्यूशन उनसे बेटर कैसे हो सकता है. जैसे मार्केट में एडोप्टेबिलिटी आपकी बढ़े, मार्केट में लोग आपके ऊपर ज्यादा फोकस करें एज एन बिजनेस पर्सपेक्टिव, नॉट द एग्जिस्टिंग वन. एंड नेमिंग एंड ब्रांडिंग, स्टार्टअप का नाम क्या रखना है, उसको ब्रांड कैसे करना है, उसका लोगो डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या लोगो हो सकता है, दैट विल कम अंडर द आइडिया स्टेज. अब आइडिया स्टेज पे एंटरप्रेन्योर्स या जनरली जो भी स्टूडेंट या पर्सन होता है, बिजनेस पर्सन, क्या फील करते हैं. एक फ्रेशर होता है कि जहाँ पे एक एंथुजियाज्म होता है कि मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है, मुझे मार्केट में इम्पैक्ट क्रिएट करना है, मेरा नाम मार्केट में एकदम छा जाना चाहिए, या अच्छा कुछ मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होना चाहिए. जनरली लोग क्या होते हैं, जनरली को लोग करंट जॉब से अनसेटिस्फाइड होते हैं या फिर करंट बिजनेस से अनसेटिस्फाइड होते हैं, और उनको कुछ आइडिया आता है कि चलो मुझे खुद का कुछ करना है, मुझे खुद का स्टार्टअप या खुद का वेंचर डेवलप करना है. जनरली ये स्टेज पे लोगों को एक कोच या मेंटर या गाइडेंस की जरूरत होती है. एंड गेट न्यू सर्टिफिकेशन मीन्स लोगों को पता चले कि मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है, यस आई हैव डन समथिंग न्यू. ओके,
इन लॉन्च स्टेज आइडिया डेवलप हो गया, चलो मार्केट में चले, ऐसा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है हमारे पास, कुछ प्रेजेंटेशन, नेमिंग, ब्रांडिंग डेवलप हो चुका है। देन आता है लॉन्च स्टेज। लॉन्च स्टेज में जनरली क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, एक वेबसाइट डेवलपमेंट होता है, एक सोशल मीडिया कंटेंट डेवलप होता है, जहाँ से लोगों को पता चले कि यस ऐसा कुछ मार्केट में है, ऐसा कुछ हम लोग कर रहे हैं। एंड वर्ड ऑफ माउथ होता है, जहाँ पे एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। कहीं पे भी हम इवेंट्स में जाते हैं, कहीं पे हम डेमो शोकेस पे जाते हैं, जहाँ पे लोगों को हम बता सकते हैं कि हमने ऐसा कुछ स्टार्ट किया है, और वहाँ से हमको एक फीडबैक मिलता है कि ये सेम एग्जिस्टिंग आइडिया को लेके मैं आगे जा सकता हूँ मार्केट में, या फिर मुझे इसमें कुछ डेवलपमेंट करना है। जैसे ही आप मार्केटिंग या आपका ब्रांडिंग शुरू कर देते हो, आपको फीडबैक मिलना चालू हो जाता है। वहां पे एंटरप्रेन्योर्स क्या फील करता है, एक फुल ऑफ इमोशन होता है कि चलो मैंने कुछ खुद का चालू कर दिया है, अब इसको मुझे आगे लेके जाना है। एक सेलिब्रेशन होता है कि हाँ एक स्टेज कंप्लीट हो गया है मेरा, रेवेन्यू नहीं है एट दिस मोमेंट, बट हो जाएगा वो। बट इन दैट स्टेज जनरली क्या हमें दिमाग में रखना है, गेटिंग एडमिशन इन फर्स्ट स्टैंडर्ड डजंट मीन्स यू आर इन हार्ड वर्क। मतलब आपने स्टार्ट किया है डजंट मीन कि आप सक्सेस हो चुके हो, सक्सीड हो चुके हैं आपके स्टार्टअप। ओके, नेक्स्ट वैलिडेशन एंड डिसीजन। जनरली वैलिडेशन एंड डिसीजन स्टेज पे ऐसा होता है कि पब्लिकेशन हो गया, आइडिया डेवलप हो गया, पब्लिकेशन हो गया, फिर आपका फर्स्ट कस्टमर्स मिलने चालू हो जाता है आपको। वहां पे आपको पता चलता है कि आपका कस्टमर फीडबैक क्या है, जिससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट प्रोडक्ट रेडी हो रहा है। प्रोडक्ट या आपका सर्विस जो भी है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन, लोगों की मार्केट की नीड्स के हिसाब से आपका सॉल्यूशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। आपका एक बिजनेस मॉडल टेस्ट होता है, जहाँ पे आपने जो भी प्राइसिंग स्ट्रेटजी डाली हुई है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डाली हुई है, वो सही है कि गलत है। आपका मार्केट से रिस्पॉन्स क्या है, अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है तो आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे चेंज कर सकते हो। अगर प्रोडक्ट पे आपका रिस्पॉन्स कम है, तो आप प्रोडक्ट पे और कुछ फीचर्स ऐड करके फिर से रिलॉन्च कर सकते हो प्रोडक्ट को। लोगों को प्राइसिंग एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग मार्केट हाई लग रहा है, तो आप कैसे प्राइसिंग पे वर्क करके उसको लो ला सकते हो, या कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे वर्क कर सकते हो। ओके, वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स क्या फील करता है, एक इटरेशंस मिल जाता है, और एक क्लैरिटी होती है कि चलो अब लॉन्च हो गया है, अब मुझे यहाँ से कस्टमर्स लाने हैं, मेरी प्रोडक्ट, मेरी सर्विस बेचनी है मार्केट में। एक क्लियर विजन होता है, एक क्लियर पाथ होता है। एंड जहाँ पे एक डिसीजन लेना होता है आपको, ये स्टेज, ये जनरली ये स्टेज ऐसा होता है कि यहाँ से आपको टेकअप करना है, या इसको क्लोज करके कुछ नया स्टार्ट करना है, या फिर इसी आइडिया को रीवर्क करना है। वो एक डिसीजन लेना एक जरूरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको मार्केट फीडबैक क्या मिलता है वो ये स्टेज पे आपको पता चलेगा। द नेक्स्ट वन इज ग्रोथ। ग्रोथ में आपका सेल्स, या जो भी आपका सेल्स फनल होती है वो ऑटोमेटेड हो चुकी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट चालू होता है, आपकी एक टीम डेवलप हो जाती है, एक आपका एक सस्टेनेबल बिजनेस या स्टार्टअप डेवलप हो जाता है, जहाँ से आप एक एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स या फंड रेजिंग पे आप फोकस करते हो, जहाँ से आपको एज एन टीम, एज एन स्टार्टअप, एज एन बिजनेस आपको ग्रो करने का चांस मिले। As you are in the growth stage, first you will thank to God that yes मेरा कुछ सेटअप हो गया है, अब यहाँ से मुझे आगे लेके जाना है। आगे लेके कैसे जाना है, सेम चीज को मैं कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। जनरली क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट का, कुछ सर्विस का एक पीरियड रहता है, 2 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, या आप उसको लॉन्गर पीरियड के लिए भी ले जा सकते हो। अभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में चला गया, 2-5 साल आपके हो गए, देन यू फील कि अभी लोगों को इसकी डिमांड ज्यादा नहीं है, देन यू कैन वर्क ऑन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उसके सब्सिक्वेंट प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, तो उसके ऊपर आप काम करके फर्स्ट जो सेटअप किया है उसको ऑटोमाइज कर दो, देन यू कैन वर्क ऑन द फर्दर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रांजिशन, जहाँ पे आपका ग्रोथ डेवलप होता है, आप उसको मार्केट में ले जा सकते हो पब्लिकली। आप वहाँ पे एक फील करते हो कि चलो मेरा बिजनेस सेटअप हो गया है, जहाँ से मेरे को गो बैक का कोई विजन नहीं है, मुझे यहाँ से आगे जाना है।
आगे इन टर्म्स ऑफ यही स्टार्टअप को आगे लेके जाना है, नई प्रोडक्ट नई सर्विस एड ऑन करनी है, एंड मुझे किसी के साथ कोलैबोरेट करके आगे वर्क करना है. So your passion and business goal drive your decision to continue or sell. जहाँ पे एक एग्जिट पॉलिसी आती है. ये स्टार्टअप को मैंने एक डेवलप कर दिया है, यहाँ से मुझे आगे इसको किसी बड़ी कंपनी में एक्वायर हो जाना है, मतलब अपना स्टार्टअप सेल कर देना है या उसको आगे कैरी फॉरवर्ड रखना. सो जनरली ये स्टेज पे हर लोग सबको ऐसा होता है कि एवरीबडी वांट्स टू बी एंटरप्रेन्योर, एंड इंडिया नीड मोर एंटरप्रेन्योर्स फॉर ग्रोथ. जैसे ही गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, they enjoy the entrepreneur or the startup enjoy the benefits of their startup criteria lot. टैक्स बेनिफिट मिलता है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट की ग्रांट फंडिंग स्कीम्स के बेनिफिट मिलते हैं. एक एडिशनल बेनिफिट होता है जो लोगों को बहुत कम पता होता है. आप जब भी बैंकिंग सेक्टर में जाते हो, आपका अकाउंट ओपन होता है, तो अभी एक नया कैटेगरी हो, जनरली सबको पता होता है मेरे को बैंक अकाउंट ओपन करना है, देन आई कैन ओपन अ सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट और कंपनी अकाउंट. बट द न्यू एडिशन इज स्टार्टअप अकाउंट. काफी आप प्राइवेट बैंक सेक्टर में जाते हो तो वहाँ पे आपको एक स्टार्टअप बैंक अकाउंट भी ओपन करके देते हैं, जहाँ पे काफी सारे बेनिफिट्स अवेल होते हैं. सो ये चीज सबको देख के ऐसा होता है कि नहीं, मुझे भी स्टार्टअप चालू करना है. आई हैव एन आइडिया, बिकॉज एट मोमेंट सारे स्टूडेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे या कोई ना कोई आइडिया पे वर्क कर रहे होते हैं. जनरली ये जो जनरेशन है वो एक हाईली डायनेमिक जनरेशन हो गया है कि कुछ ना कुछ आइडियाज आते रहते हैं. कभी हम फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं चाय की टपरी पे, कभी हम ऐसे ही ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, कुछ छोटा सा प्रॉब्लम फेस होता है कि यार ये बड़ा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं, खुद के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. फिर ऐसा होता है कि यार हमें प्रॉब्लम है तो दूसरों को भी होगा, हम उसको प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं, वो हमें पैसा देगा, ऐसे हम हमारा स्टार्टअप चालू करते हैं. सो नाउअडेज एवरीवन वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, एंड these are some example based startup in India. So they all are young. They have started at the young age. Paytm at 37, Flipkart at 35, Snapdeal at 31, Ola, and the special one is Oyo Rooms. Ritas Agrawal started their own startup at the age of 21. So you can start your own startup or you can work on your own idea at any age. As soon as you work on your idea, the success or the time period you have is very good. So if they can, why not you? जनरली क्या होता है, समवेयर बिटवीन 20 to 30 के एज पे हम लोग कहीं पे भी खो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, हम आइडिया लॉस्ट हो जाता है. जैसे हम लोग बैचलर्स में होते हैं, हमारा बैचलर खत्म हुआ होता है, हम फ्रेंड्स के साथ मिलके या खुद कुछ स्टार्टअप आइडिया पे वर्क करना स्टार्ट तो कर देते हैं, बट वी कांट टेक दैट अहेड. क्यों? बिकॉज जनरली बैचलर्स खत्म होने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं. मास्टर्स करना है मुझे, फॉरेन जाना है, जॉब करके सेटल होना है, बिजनेस चालू करूँ. अगर बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने, 1 साल 2 साल के लिए कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, घर से एक फैमिली प्रेशर होता है कि क्या कर रहा है तू, पैसे तो कोई जनरेट हो नहीं रहे. सो यू लॉस्ट समवेयर बिटवीन 20 to 30, जहाँ पे आपका कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, आपको फर्दर स्टडीज के लिए जाना है, कुछ डिसीजन ले नहीं सकते आप. सो यू नीड टू बी अ फोकस बिटवीन 20 to 30 कि हाँ मुझे ये करना है, आई विल टेक अ टाइम, मैं 2 साल 3 साल टाइम लूंगा, देन माई लाइफ विल बी ऑन अ गुड पाथ. 5 sorry. So there are 5 elements of success. जहाँ पे there are 5 elements of the success, जहाँ पे अगर आप ये 5 एलिमेंट पे वर्क करते हो आपका आइडिया को लेके, then there are good chances to success your own startup. First one is your idea. एक आइडिया डेवलप हो गया, एक आइडिया आपके दिमाग में आया, देन यू नीड टू वर्क ऑन योर आइडिया. आइडिया पे कैसे काम करना है,
एक मार्केट सर्च करना है कि एग्जिस्टिंग आइडियाज क्या कर रहे हैं, आपका आइडिया क्या है, आपका एग्जिस्टिंग से इनोवेटिव क्या है, आपके आइडिया पे टेक्निकल एडवांसमेंट क्या है, कमर्शियल एडवांसमेंट क्या है, टेक्निकली क्या डेवलप किया हुआ है, कमर्शियली प्राइसिंग स्ट्रेटजी में आप क्या काम कर रहे हो, वो सारा आपके आइडिया पे वर्क करना है। तो सेकेंड वन इज टीम। टीम इज वेरी 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 एसेंशियल पार्ट, जहाँ पे जनरली लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मैंने एक आइडिया डेवलप किया है और मुझे उसके ऊपर काम करना है। नाउ मैं मेरे फ्रेंड्स को बताता हूँ, फ्रेंड मतलब जो मेरा क्लासमेट है या मेरा कलीग है, उसको मैं बताता हूँ कि यार ये कैसा आइडिया है, इसके ऊपर काम चालू करते हैं, और दोनों काम स्टार्ट कर देते हैं। बट दोनों स्किल सेट दोनों स्किल सेट सेम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेक्निकल पर्सन, आई एम वर्किंग ऑन माई आइडिया इन मैकेनिकल डेवलपमेंट, एंड देन मैं सेम मैकेनिकल फील्ड का बंदा ले रहा हूँ, तो कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मेरे पास टेक्निकल टीम डेवलप हो जाएगी, बट आई डोंट हैव एनी मार्केटिंग टीम, एनी फाइनेंस टीम, सो you need to choose a team very well. द थर्ड वन इज बिजनेस मॉडल, जहाँ पे आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगा, आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मार्केटिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी कंबाइन में क्या रहेगी। कंबाइन में इट मीन्स इनिशियल स्टेज पे एक जनरली आपने ये देखा होगा कहीं पे भी कि जैसे ही न्यू प्रोडक्ट डेवलप होती है या कोई आईटी में डेवलपमेंट होता है, तो लोग आपको एक रिवॉर्ड देते हैं कि आपने हमारा फर्स्ट सर्विस ले लिया तो आपको नेक्स्ट सर्विस पे 30% डिस्काउंट मिलेगा, और आपने अगर हमारे 3 प्रोडक्ट परचेज किए तो आपको एक कूपन मिलेगी जिससे आप ये सर्विस या ये प्रोडक्ट अवेल बेनिफिट कर सकते हो। सो दीज ऑल आर योर बिजनेस मॉडल, कि जहाँ पर आप एक वर्क कर सकते हो कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी मार्केट में, इम्पैक्ट लाने के लिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी, जिससे मेरा एक इनिशियल रेपो बन जाएगा मार्केट में। नेक्स्ट, फंडिंग। फंडिंग जनरली एक एसेंशियल की एलिमेंट होता है कि फंड कहाँ से लाओगे, बिकॉज व्हेन यू विल स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप, आपको काफ़ी सारे पैसे लगेंगे फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फॉर द मार्केटिंग। प्रोडक्ट डेवलप हुआ उसके बाद अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको फर्दर इटरेशंस लाके फर्दर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ये सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? जनरली एज अ स्टूडेंट स्टेज पे आपको पॉकेट मनी मिलती है। अब यहाँ पे आई डोंट नो कितने स्टूडेंट है, बट आई होप द मेजर पार्ट इज स्टूडेंट। तो अगर स्टूडेंट है हम लोग, हमको पॉकेट मनी मिलती है। जनरल पॉकेट मनी कहाँ पे यूज हो जाती है? मूवीज के लिए, पेट्रोल के लिए, कहीं पे फ्रेंड्स के साथ घूमने गए तो कुछ खाने पीने में। कोई पैसे बचते ही नहीं है जहाँ पे आप स्टार्टअप पे वर्क कर पाओ। और अगर हमने घर से पैसा घर से पेरेंट्स से पैसे मांगे, पेरेंट्स हमको एक बार पैसे देंगे, 2 बार पैसे देंगे, फिर ऐसा करेंगे तू कर क्या रहा है कि इतने पैसे की जरूरत है तुझे। तो एट दैट स्टेज आपको कहीं से फंड अवेल करना रहेगा कि आप फ्रीली आपके आइडिया पे वर्क कर पाओ। फंडिंग के लिए काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम, प्राइवेट स्कीम्स अवेलेबल होती है। द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड state government and the central government scheme will discuss in later part in today's session. And the timing is also very crucial, because टाइमिंग एक ऐसी चीज है, आपकी अगर प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड मार्केट फिट है, अगर आपने राइट टाइम पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो वो कोई मीनिंगफुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग ऑन सम पब्लिक हेल्थ पार्ट, जहाँ पे आप कोई वेंटिलेटर पे वर्क कर रहे हो, आपने कोविड के टाइम पे वेंटिलेटर पे वर्क स्टार्ट कर दिया है, इफ यू आर टेकिंग अ टाइम लॉट, 1 साल 1.5 साल का टाइम ले रहे हो, एंड देन यू लॉन्च इन आफ्टर 2 ईयर, तो वो कोई मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि काफी सारे एग्जिस्टिंग चीजें मार्केट में आ चुकी होगी। आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं रहेगा, आपके पास लॉन्चिंग एडवांटेज नहीं रहेगा, और एक जो सिनारियो रहता है वो भी नहीं मिलेगा आपको। So your launching the right time to launch your startup is very essential. And a study found that the average person has about 12,000 to 60,000 idea per day. आपको दिमाग में बैठे बैठे 12,000 से 60,000 आइडियाज आते रहते हैं दिन में, ऐसा एक स्टडी बोलती है। आपको जस्ट वन आइडिया पिकअप करना है, ऐसा आइडिया जहाँ पे
वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको लोग पैसा दे. Okay. So before you start your own startup, you need to focus on your target audience. आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आप किसको बेचने वाले हो. जिस आपने एक आइडेंटिफाई कर दिया कि ये मेरा टारगेट ऑडियंस है. अब टारगेट ऑडियंस क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स हो सकते हैं, कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस जो बिजनेस टू बिजनेस B2B बोलते हैं. B2C होता है आपका बिजनेस टू डायरेक्ट कस्टमर. एक बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग ऑन सम इनोवेटिव आइडिया, जहाँ पे आप कोई रोड बनाने के लिए वर्क कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आप प्लास्टिक वेस्ट में से रोड बनाने का कुछ इनोवेशन पे वर्क कर रहे हो. इसमें आपका टारगेट ऑडियंस कौन होगा, मेजर टारगेट ऑडियंस होगी कॉन्ट्रैक्टर एंड गवर्नमेंट. क्योंकि ये कोई डायरेक्ट कस्टमर तो परचेस करने वाला है नहीं आपका आइडिया. तो इसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो हो गया बिजनेस टू बिजनेस. आपको गवर्नमेंट के पास जाने पड़ेगा, वो हो गया बिजनेस टू गवर्नमेंट. सो यू नीड टू चूज अ राइट टारगेट ऑडियंस. देन साइज ऑफ यूजर्स, कितने यूजर्स है आपके पास. जनरली क्या होता है कि एक आइडिया डेवलप हो गया, ऑडियंस डेवलप हो गई, बट उसको खरीदने वाले, उसको यूज करने वाली यूजर्स की साइज बहुत कम है. सो इट विल नॉट गोना बेनिफिट फॉर योर ओन स्टार्टअप टू रेवेन्यू जनरेशन, a major part of revenue generation. Okay, the next one is business size. उसकी स्केलेबिलिटी क्या है, उसको कितना एक्सपांड कर सकते हो, वो आपको ध्यान में रखना है. B2B, B2C आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द टारगेट ऑडियंस. एंड एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस. कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या है, जनरली आप जब भी आइडिया पे कोई वर्क करते हो, आपको देखना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग मार्केट में सिमिलर कॉम्पिटिटर कौन है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग ऑन अ EV सेक्टर, तो EV सेक्टर में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में कौन कौन एग्जिस्टिंग मार्केट में है, वो आपको देखना पड़ेगा. वो कॉम्पिटिटर से आपका क्या बेनिफिट है, वो आपको देखना पड़ेगा. और उसके सामने आप कितना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे आपका स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हो या चला सकते हो, वो देखना पड़ेगा. कभी क्या होता है कि आप कोई आइडिया लेके आए हो, आइडिया इज वेरी गुड, बट आपका कॉम्पिटिटर कोई जायंट कंपनी होती है, और उसके हिसाब से, उसके कंपेयर में आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते हो. तो आपका इनिशियल जो आपने टाइम दिया है, मतलब पैसे लगाए हैं, वो एक मतलब उसका कुछ बैक नहीं होता है, कुछ आपको मिलता नहीं है पैसे. सो यू नीड टू वर्क ऑन द कॉम्पिटिटर एनालिसिस एट द स्टार्टिंग स्टेज. These are the top 10 startup mistakes where the startup fails. The first one is building something that nobody wants. कभी हम लोग आइडिया पे वर्क करते हैं, हमें लगता है आइडिया इज वेरी गुड. हम किससे पूछते हैं कि आइडिया अच्छा है कि नहीं? हम पूछते हैं हमारी फैमिली से, हम पूछते हैं हमारे कलीग से, हम पूछते हैं हमारे फ्रेंड्स से. फैमिली, कलीग, फ्रेंड हर बार आपको एंकरेज करने के लिए बोलेंगे, हाँ हाँ मस्त आइडिया है, तू काम कर, ये आइडिया काफी अच्छा है. आइडिया काफी अच्छा है, मार्केट में नीड है कि नहीं, द सिमिलर एग्जिस्टिंग पर्सन, द थर्ड पर्सन, जिसको बोलते हैं कि सिमिलर फील्ड में जो बनता है, वो ये सॉल्यूशन लेने के लिए, ये प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है कि नहीं, एडप्टेबिलिटी रेट क्या है, वो हम कभी चेक ही नहीं करते. एंड उसके लिए द मेजर पार्ट रहता है कि स्टार्टअप फेल्स हो जाते हैं, किसी को नीड ही नहीं होती और हम डेवलप कर देते हैं. हायरिंग पुअरली मतलब आपने इनिशियली टीम डेवलप की हुई है, आप इंटर्न्स हायर कर रहे हो, आप टीम डेवलप कर रहे हो, तो वहां पे आपकी जो टीम डेवलप होती है वो सिमिलर स्ट्रेंथ की टीम डेवलप हो जाती है. मैं टेक्निकल बंदा हूँ, मैंने सिमिलरली मेरे फ्रेंड्स को टीम में इन्वॉल्व किया है. मेरे फॉर एग्जांपल, इफ आई एम वर्किंग ऑन द फैमिली बिजनेस, कि फैमिली बिजनेस में मैं काफी सालों से काम कर रहा हूँ, जिसमें एक इनोवेटिव लेके आया हूँ. तो टेक्निकली आई हैव साउंड बैकग्राउंड, लाइक मेरे फादर है या कोई और टीम है जो टेक्निकली साउंड है. आई एम ऑल्सो टेक्निकली साउंड. मैं किसी फ्रेंड को इन्वॉल्व कर रहा हूँ जो भी टेक्निकली साउंड है, बट की टीम बनती जाती है. मैं जो भी पर्सन्स को इन्वॉल्व करता हूँ वो सिमिलर फील्ड में होते हैं. तो मेरे पास डाइवर्सिफाई नेटवर्क नहीं होता है जहाँ पे मैं मेरी टीम को एक अच्छे से यूज कर पाऊँ. सो एक मेजर चांस रहता है कि आपका स्टार्टअप फेल हो जाएगा. लेक ऑफ फोकस, ये लेक ऑफ फोकस में जनरली हम लोग स्टडी के साथ साथ एक स्टार्टअप करते हैं.
फॉर एग्जांपल आई एम स्टडिंग इन पोस्ट ग्रेजुएट, मेरा मास्टर चल रहा है, मैं साथ में स्टार्टअप कर रहा हूँ. I can't focus on my startup. I can't focus on my study. Similarly, I am also working person. जहाँ पे मैं एक कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ एंड साथ साथ में कोई मेरे आइडिया पे भी वर्क कर रहा हूँ. इफ आई एम वर्किंग ऑन माई वर्किंग एज इन वर्किंग एज इन जॉब पर्सन, आई हैव टू फोकस ऑन माई जॉब फॉर द 8 or 9 hours. देन आपका स्लीपिंग आवर्स गिन लो, आपका फैमिली टाइम गिन लो, देन यू हैव वेरी लेस टाइम जहाँ पे आप आपके आइडिया पे काम कर रहे होते हैं. जनरली क्या होता है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जब भी टाइम मिल गया चलो उसके ऊपर काम कर लेते हैं, देन आपका एक फोकस नहीं रहता. आपका जो एक ग्रेजुअल पाथ होना चाहिए, उसके ऊपर डेवलपमेंट पाथ होना चाहिए, वो लूज हो जाता है. उसके लिए आपको एक काफी टाइम, मतलब 1 साल 1.5 साल हुआ, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार इसके ऊपर तो काम ही नहीं हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, चलो स्टार्टअप बंद कर देते हैं. सो दीज आर द मेजर mistakes. I have also mentioned some small mistakes. That's how the startup can fail. Nothing is permanent in technology except change. जहाँ पे पहले ऑर्कुट था, ऑर्कुट को रिप्लेस कर दिया फेसबुक ने. अर्लियर हम लोग एसएमएस बोलते थे कि मेरे को एसएमएस करते, कुछ भी हमें टेक्स्ट मैसेज करना रहता था. अगर मुझे कोई डिटेल किसी को भेजनी है तो हम लोग पहले बोलते थे कि मेरे को एसएमएस करते. नाउ व्हाट्सएप रिप्लेस द एसएमएस. अभी आपको कोई भी बोलेगा मेरे को मैसेज करते, मैसेज रिफ्लेक्ट इन मेजर केसेस, मैसेज रिफ्लेक्ट एज इन व्हाट्सएप. हम किसी को टेक्स्ट मैसेज नहीं करते, हम सीधा उसको व्हाट्सएप करते हैं. अगर हमें किसी को बोलना है मुझे रेगुलर मैसेज कर दे, तो हम पर्टिकुलरली बोलते हैं कि मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर दे, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दे. कोई जनरली ये वर्ड यूज नहीं करता है, लोग बोलते हैं मेरे को मैसेज करते हैं. सो एसएमएस रिप्लेस बाय द व्हाट्सएप. एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बैंकिंग सेक्टर में उसको रिप्लेस कर दिया है प्राइवेट बैंकिंग ने. फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक ने, जहाँ पे काफी सारी आपको सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज मिल जाती है, जहाँ से आपका एक्सेस इजी हो जाता है. सो नथिंग इज परमानेंट इन टेक्नोलॉजी. आपको कीप चेंजिंग रहना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, ये मैं क्यों बता रहा हूँ पर्टिकुलरली, आपने कोई स्टार्टअप लॉन्च कर दिया, आप कोई टेक्नोलॉजी पे या आप कोई प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हो, आपको कीप चेंजिंग, मतलब आपको एक डेवलपमेंट लाते रहना है. फॉर इनिशियल 2 years 5 years 3 years के लिए आप सिमिलर आइडिया पे सिमिलर प्रोडक्ट में मार्केट में सस्टेन कर पाओगे. बट आफ्टर अ सर्टेन ईयर्स कोई ना कोई मार्केट कॉम्पिटिटर ऐसा आ जाएगा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से डेवलपमेंट करके मार्केट में लेके जाएगा, एंड आपका जो भी कस्टमर रेंज है वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा. So that's all about the our startup entrepreneurship, the parameters of startup, how you can start your own startup. Yeah, I just want to add one more thing. अगर आप कोई आइडिया पे वर्क कर रहे हो, आपके स्टार्टअप क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा है, स्टार्टअप क्राइटेरिया में आपका आइडिया फुलफिल हो रहा है, तो आप अपने आप को कैसे स्टार्टअप डिफाइन कर सकते हो. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज वन प्रोविजन कि जहां पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आपको एक सर्टिफिकेट देती है कि यस योर कंपनी विल फॉल अंडर, योर कंपनीज फॉल अंडर स्टार्टअप क्राइटेरिया, एंड आप स्टार्टअप के जितने भी बेनिफिट्स है उसको अवेल कर सकते हो. अब वो कैसे करना है, अगर फर्स्ट यू नीड टू चेक दिस क्राइटेरिया डेफिनेशन. अगर आप फुलफिल हो रहे हो तो आपको स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाना है. स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे गेट डीपीआईआईटी रिकॉग्निशन टैब है, वहां पे क्लिक करना है. वहां पे 6 या 7 अलग अलग डिटेल्स है, आपको सारी डिटेल सबमिट करनी है, एंड यू नीड टू फाइनल सबमिट योर एप्लीकेशन. जैसे ही आपकी फाइनल सबमिट एप्लीकेशन हो जाएगी, आपको 15 डेज के टाइम पीरियड में एक स्टार्टअप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा. अगर आपका कहीं पे भी क्वेरी है स्टार्टअप इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई क्वेरी है, देन दे विल मेल यू. आपको एक मेल आएगा कि ये क्वेरी है, क्वेरी रिजॉल्व करना है, फिर से उनको सेंड करना है, सारी डिटेल अपडेटेड डिटेल भरनी है, देन यू विल गेट द स्टार्टअप सर्टिफिकेट.
So that's all about the startup and entrepreneurship. Now, our second part about the funding opportunities and the grant provided by the government. So I have written down the some grant. काफी सारी grants available है, काफी सारी प्राइवेट स्कीम्स भी अवेलेबल है जहाँ पे आप फंडिंग ले सकते हो. आई हैव मेंशन गवर्नमेंट ग्रांट हियर. गवर्नमेंट पे भी मैंने दो सेक्टर पे लिया है. फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की क्या स्कीम्स है. सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की क्या स्कीम है. So there are some schemes: Student Startup Innovation Policy (SSIP). Second one is Scheme for Assistance for Startup Innovation, Gujarat Industrial, under Gujarat Industrial Policy 2020, जिसको हम स्टार्टअप गुजरात ग्रांट या एनआई ग्रांट, नोडल इंस्टीट्यूट ग्रांट बोलते हैं. The third one is Startup India Seed Fund Scheme (SISFS). The fourth one is MSME Innovative Scheme. So first two is from the government of Gujarat, by the government of Gujarat. Third, fourth, fifth, sixth is by the government of India. Ambedkar Social Innovation and Incubation Mission, and the rest other grant is BIRAC Big Grant. Big is called as an Bio Ignition Grant. The next one is Nidhi Prayas. So in next few minutes, upcoming slides, we'll discuss on first to five schemes, various parameters, the funding amounts, how you can avail the funding schemes, eligibility criteria, and those all part. Info in the next six, I would like to discuss in this slide. The BIRAC Big Grant is for the particularly for the healthcare sector grant, जहाँ पे आपको आइडिया, यू विल वर्क ऑन, इफ यू विल वर्क ऑन योर idea to POC development and idea to prototype development, they will provide the fund. BIRAC will provide the fund under the grant of the 50 lakh rupees grant. And जहाँ पे अगर आपका कोई प्रोटोटाइप डेवलप हो चुका है, if you are working on the validation stage, or if you are working on the market, ready to market, ready to launch in market stage, then the BIRAC will big is not basically will not fall under the big grant. Big is for the idea to prototype development. 50 लाख रुपीस का 50 लाख 50 लाख रुपीस का ग्रांट रहता है, जहाँ पे इसका आप स्कीम बेनिफिट एंजॉय कर सकते हो. इसको अप्लाई कैसे करना है, BIRAC का वेबसाइट है. BIRAC के वेबसाइट के अंदर आपको एज एन इंडिविजुअल, फर्स्ट एज एन इंडिविजुअल और एज एन स्टार्टअप अप्लाई कर सकते हो. वहाँ पे every February and every August they have call, ओपन कॉल. एक कोहार्ट बेस्ड एप्लीकेशन रहती है जहाँ पे आपको फेब्रुवरी एंड अगस्त में कॉल आता है, कॉल ओपन होता है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना रहेगा. ओके. देन निधि प्रयास. निधि प्रयास में वहाँ पे आपको आइडिया टू प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, आइडिया टू POC डेवलपमेंट के लिए फंड मिलता है. निधि प्रयास में आपको पर्टिकुलरली 10 लाख रुपीस का फंड मिलता है, 10 लाख रुपीस फंडिंग फॉर योर ओन स्टार्टअप. निधि प्रयास काफी सारे, निधि इज अ डिपार्टमेंट बाय द मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. प्रयास इज द स्कीम. काफी सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स है, काफी सारे प्राइवेट इंक्यूबेटर्स, गवर्नमेंट इंक्यूबेटर्स है, जो निधि प्रयास के रिकॉग्नाइज इंक्यूबेटर है. आपको वहां पे अप्लाई करना है, एंड आफ्टर सर्टेन स्क्रीनिंग प्रोसेस, इफ यू विल शॉर्टलिस्टेड, दे विल गिव यू द ग्रांट ऑफ 10 लाख रुपीस अंडर निधि प्रयास. गुजरात में अगर देखने जाए, आई नो द मेजर ऑडियंस पार्ट इज फ्रॉम द गुजरात. सो इफ गुजरात में देखने जाए तो iCreate, IIT गांधीनगर एंड वेंचर स्टूडियो, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी is the authorized center for the Nidhi Prayas. Okay. Next, Student Startup Innovation Policy. The Education Department, Government of Gujarat launched the SSIP policy in 2016 for the student, particularly for the student. The grant is for the developing proof of concept, and the grant amount is 2 lakh rupees in SSIP 1.0.
So SSIP 1.0 policy was launched in 2016 for the 5 years. So अभी 2021 में SSIP 1.0 policy expire हो चुकी है. Then the government of Gujarat Education Department launched the SSIP 2.0 policy. वहाँ पे ग्रांट अमाउंट अमेंड हो चुका है. वहाँ पे आपको 2.5 लाख रुपीस का ग्रांट, मैक्सिमम 2.5 लाख रुपीस का ग्रांट मिल सकता है फॉर योर ओन आइडिया. Eligibility criteria क्या है? If any innovator startup has minimum one co-founder or one founder as either a present student in UG, PG, PhD program or passed out alumni across the various program in any university in Gujarat in the last 5 years. So एक सिंपल क्राइटेरिया है. आप स्टूडेंट गुजरात की कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स होने चाहिए. स्टूडेंट्स होने चाहिए. आइदर अगर आप पास आउट में है तो आप एल्यूमिनी 5 साल के गैप पीरियड्स में होने चाहिए. ओके. Yes, as I am from the EDII, we have the 18 idea recognized under the SSIP from EDII. So if you want to give more detail on SSIP and SSIP policy, their criteria, SSIP की कितनी इंस्टीट्यूट्स है, यू कैन चेक दी ssipgujarat.in. गुजरात में आई थिंक 175 और 180 इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज है जिसके पास SSIP की स्कीम्स अवेलेबल है. स्कीम फॉर असिस्टेंट फॉर स्टार्टअप अंडर गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी. स्टार्टअप गुजरात ग्रांट क्या है? सो इंडस्ट्रीज कमिश्नरेट लॉन्च वन पॉलिसी, Gujarat Industrial Policy 2020, to encourage the R&D, startup innovation and entrepreneurship. So जहाँ पे 2015 में, so first 2015 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी फॉर द 5 ईयर. 2020 में ये पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी. 2015 का पॉलिसी बेनिफिट ये था कि 20 लाख रुपीस का ग्रांट मिलता था. 10 लाख रुपीस फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट. आपका प्रोडक्ट डेवलप हो गया, मार्केट में सस्टेन हो गया, लॉन्च हो गया, देन यू कैन अप्लाई फॉर द मार्केटिंग ग्रांट जहां पे आपको 10 लाख रुपीस फॉर द मार्केटिंग बेनिफिट्स मिलता था. नाउ 2020 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी अमेंड होकर लॉन्च हुई. वहां पे सीड सपोर्ट आपका 20 लाख से इंक्रीज होकर 30 लाख रुपीस का हो गया है. इन 30 लाख रुपीस यू कैन अवेल द बेनिफिट फॉर द प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ट्रायल, सर्टिफिकेशन, मार्केटिंग एंड ऑल. सो जनरली पहले 10 लाख रुपीस का डिवीजन था. प्रोटोटाइप डेवलपमेंट 10 लाख, मार्केटिंग के लिए 10 लाख. जहाँ पे अभी 30 लाख रुपीस यू कैन अवेल इन एनी सेगमेंट. You can project 20 lakh as in product development, 10 lakh in the marketing, or 5 lakh in the marketing, 5 lakh for the testing, trial, certification, or you can avail the 25 lakh rupees of marketing. So marketing benefit 5 lakh rupees for the further development plan. So you can avail the benefit as in 30 lakh rupees of seed support. Also, you can apply as a sustenance support, 2.4 lakh rupees per year for a 1 year period, 3 lakh rupees for the woman founder. जनरली सस्टेनेंस सपोर्ट किसके लिए होता है? जैसे मैंने बताया आपको, आप स्टूडेंट है या आपका ग्रेजुएशन अभी खत्म हुआ है एंड यू आर वर्किंग ऑन योर ओन आइडिया और योर ओन स्टार्टअप, जहाँ पे आपको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, तो आपको एक फाइनेंशियल बैकअप मिले. आपका फैमिली से कोई ये ना बोले कि कुछ मतलब आपको कुछ सस्टेन नहीं हो रहा है, आपको कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं, यू आर कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन दिस आइडिया और स्टार्टअप, तो आपको आपका फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी बेटर रहे, उसके लिए सस्टेनेंस अलाउंस दिया जाता है. क्या है? एनी इंडिविजुअल हैविंग इनोवेटिव आइडिया और कॉन्सेप्ट रिकमेंडेड बाय द अप्रूव्ड नोडल इंस्टीट्यूट विल बी एलिजिबल. मतलब आपको गवर्नमेंट ऑफ गुजरात डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करेगी, आपको जो भी अप्रूव्ड नोडल इंस्टीट्यूट्स है उसके पास जाना है. नोडल इंस्टीट्यूट will scrutinize your idea, and after certain scrutiny process you will be recommended by nodal institute to the government of Gujarat. एंड उसके लिए आपका जो भी रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, रजिस्टर्ड आइडिया है, मस्ट बी इन गुजरात, जो गुजरात में होना चाहिए. ओके. यहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स और काफ़ी अर्ली स्टेज इनोवेटर्स बोलते हैं कि हमें कंपनी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है
इनिशियल मोमेंट इट इज नॉट कंपलसरी। आप प्रपोज कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हो ये स्कीम के तहत, बट वहाँ पे एक क्राइटेरिया है, जैसे ही आपका सैंक्शन हो जाएगा और आपको फंडिंग बेनिफिट्स मिल जाएगा, देन यू मस्ट need to register your company in Gujarat. There are 29 startups from EDII, who is recognized by the Startup Gujarat under this 2015 and 2020 policy. So for more detail, you can check the eligibility criteria and more benefit in the startup.gujarat.gov.in part. The next funding scheme is Startup India Seed Fund Scheme. So first SSIP and Startup Gujarat is from the Government of Gujarat scheme, जहाँ पे Government of Gujarat आपको funding और grant benefit देता है. The Startup Startup Gujarat and SSIP scheme is purely based on the grant. It means you don't need to repay these grant amount to any nodal institute or any government institute. The whole amount is your own. Startup India Seed Fund Scheme, SISF schemes launched by Startup India, Government of India, aims to provide the financial assistance to startup for proof of concept, prototype development, product trials, market entry, and commercialization. Now, I think it cover all the aspect of startup from idea to commercialization stage. जहाँ पे आपको फंडिंग सपोर्ट मिलता है, एक फर्स्ट एज एन ग्रांट, मैक्सिमम लिमिट इज 20 लाख रुपीज, एंड सेकेंड वन इज कन्वर्टेबल डिवेंचर, जहाँ पे आपको 50 लाख रुपीज का 50 लाख रुपीज का मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है. यहाँ पे दो क्राइटेरिया अलग अलग इसलिए है. ग्रांट सपोर्ट एक आइडिया टू पीओसी टू प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए मिलता है, एंड if you have your developed product or your developed prototype and you are working on the validation or the at the market entry stage, then your startup will fall under the convertible debenture support, जहाँ पे आपको एक convertible debenture के फॉर्म में फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है. नाउ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के फॉर्म पे काफी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हो गए जिनको पता नहीं है कि ये कैसे वर्क करता है. Now they have two aspects. The first one is you can take the benefit as in loan, जहाँ पे आपको कुछ लोन परसेंटेज प्रीडिफाइन होते हैं बाय द इंक्यूबेटर, जो भी आपकी इंक्यूबेटर एजेंसी है, इंक्यूबेशन सेंटर्स है, उसके साथ डिफाइन किया गया है. वो लोन अमाउंट इंटरेस्ट रेट के साथ रीपे करने रहते हैं आफ्टर सर्टेन ईयर. else you can choose the convertible debenture as in equity part, जहाँ पे आपका जितना भी टाइम पीरियड डिफाइन किया गया है उसके बाद आपका कंपनी वैल्यूएशन निकलता है, एंड बेस्ड ऑन दोस कंपनी वैल्यूएशन आपको इक्विटी देना रहेगा टू इंक्यूबेटर. What is the eligibility criteria? A startup recognized by DPIIT. जैसे मैंने बताया, फर्स्ट SSIP और NI के लिए DPIIT is not the mandatory part, but SISFS के लिए DPIIT mandatory है. DPIIT क्या है? जहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको एक स्टार्टअप सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. वो एक यहाँ पे स्टार्टअप सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड स्टार्टअप कंपलसरी होना चाहिए. Startup मतलब DPIIT incorporated not more than 2 years ago at the time of application. जब भी आप SISFS एप्लीकेशन करते हो वहाँ पे आपका DPIIT 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए. A startup should not have received more than 10 lakh rupees of mandatory support under any central or state government scheme. आपको पहले, अगर आप SISFS में अप्लाई करते हो तो उससे पहले आपको कहीं से भी 10 लाख से ज्यादा का फंडिंग सपोर्ट अवेल किया नहीं होना चाहिए. Okay, for more detail you can check seedfund.startupindia.gov.in. easier way है कि आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट से चले जाइए. स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे एक SISFS का अलग से टैब है, उसके ऊपर क्लिक करने पे आपको सारी डिटेल SISFS की वहां मिल जाएगी. MSME इनोवेटिव स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME. सो जनरली हम लोगों को एक दिमाग में रहता है कि MSME मतलब कोई
मीडियम स्केल कंपनी हो गई या मेरा ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। एमएसएमई सपोर्ट होता है, मतलब एक मेरे को कंपनी के लिए मेरे को जो भी लोन चाहिए या बाकी सारे बेनिफिट्स चाहिए उसके लिए गवर्नमेंट एमएसएमई सपोर्ट करती है। नहीं, एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक और स्कीम है, एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम, जिसके अंडर एमएसएमई आपको एज एन स्टार्टअप, एज एन आइडिया लेवल पे सपोर्ट करती है, एज ए फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। वहाँ पे आप आपका आइडिया डेवलप करने के लिए वर्क कर सकते हो। सो इन एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम 15 लाख रुपीस का ग्रांट सपोर्ट रहता है, जहाँ पे आप आइडिया टू प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए वर्क कर सकते हो। The main eligibility criteria is any individual, startup, innovator or MSME can apply under MSME innovative scheme. यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल हो, इसको आपको कैसे अप्लाई करना है, जैसे ही आप माई एमएसएमई स्कीम पे जाओगे या इनोवेटिव एमएसएमई स्कीम सर्च करोगे, आपको वहाँ पे एक एमएसएमई का टैब मिलेगा, एमएसएमई इंक्यूबेशन का टैब मिलेगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अभी तक की जितनी भी स्कीम थी, एसआई, एसएफएस, स्टार्टअप गुजरात, एसएसआईपी, वो ऑल टाइम ओपन रहती है। कभी भी उसको आप कभी भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और कभी भी मतलब बेनिफिट्स ले सकते हो। MSME इनोवेटिव स्कीम इज वर्किंग बेस्ड ऑन द कोहार्ट बेस्ड एप्लीकेशन, जहाँ पे हैकाथॉन के फॉर्म पे या एक कॉल फॉर एप्लीकेशंस के फॉर्म पे कॉल ओपन होता है। वही ड्यूरेशन के अंदर आपको एप्लीकेशन करनी रहती है। और एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हो, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप आधार कार्ड नंबर के साथ अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एमएसएमई हो तो उद्योग आधार नंबर जो होता है आपका एमएसएमई का, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। स्कीम का एक मेजर पार्ट है कि जहाँ पे आपने प्रायर कहीं से भी फंडिंग नहीं लिया होना चाहिए फॉर द सेम पर्पस। एंड अगर आपका प्रोटोटाइप डेवलप है, आपका ऑलरेडी एक डेवलप्ड प्रोडक्ट है, तो आप ये स्कीम में एलिजिबल नहीं होंगे, बिकॉज द स्कीम इज फॉर आइडिया टू प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड दोज हु नॉट रिसीव द प्रायर फंडिंग फ्रॉम एनी फॉर द सेम पर्पस। Okay. MSME स्कीम 10th मार्च टू 23rd मार्च 2022 पे ओपन हुई थी। सो आई थिंक 3 मंथ अगो ये स्कीम ओपन हुई थी, जहाँ पे अभी एक पूरा कॉल, ये जो भी पूरी साइकिल है वो कंप्लीट होगी, देन द नेक्स्ट कॉल विल ओपन। अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन, असीम। सो ये एक पर्टिकुलरली ऐसी स्कीम है जो एससी स्टार्टअप को प्रमोट करती है। अंडर असीम इनिशिएटिव 1000 एससी यूथ वुड बी आइडेंटिफाई विद द स्टार्टअप आइडिया थ्रू द टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, टीबीआई। नाउ टीबीआई क्या है? टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर इज द incubation center supported by Department of Science and Technology. In order to further motivate, encourage the venture capital for the scheduled caste, keep focus attention on providing equity support to young SC entrepreneur working on innovative technology based idea. एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो असीम के अंडर दो फंडिंग रहता है। द फर्स्ट फंडिंग इज योर इनिशियल फंडिंग विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन दिस स्कीम। द सेकंड फंडिंग इज द वेंचर कैपिटल फंडिंग, जहाँ पे इक्विटी बेस्ड फंडिंग रहता है, जो आप आफ्टर certain launch in market, after certain progress, you can take the benefit. यहाँ पे आपको फंडिंग सपोर्ट मिल जाएगा 30 लाख रुपीस का फॉर द 3 ईयर, 10 लाख रुपीस ईच ईयर। 30 लाख रुपीस इक्विटी टर्म्स पे होते हैं, वो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन पे डिपेंड होता है कितनी इक्विटी डाइल्यूट होगी। इधर 8% स्टैंडर्ड जनरल इक्विटी होती है, 8% से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर वैल्यूएशन, योर कंपनीज वैल्यूएशन। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एनी एससी scheduled caste innovator having more than 51% of stake into the startup. So for more detail you can check the scheme guideline, बट ये एक मेजर क्राइटेरिया है कि आपके स्टार्टअप या आपके कंपनी के अंडर 51% से ज़्यादा स्टेक ऐसी कैटेगरी इनोवेटर्स का होना चाहिए।
सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। यहाँ पे काफ़ी सारी स्कीम्स का मैंने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफ़ी सारी स्कीम्स का मैंने बता दिया। आप कैसे बेनिफिट ले सकते हो, कितना अमाउंट का बेनिफिट आपको मिलेगा, कब ले सकते हो, ये सारा मैंने बता दिया। आई जस्ट वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग इन असीम स्कीम। असीम स्कीम के लिए कि जैसे मैंने टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर बताया, ऐसे एक एआईसी होता है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर। सो काफ़ी एआईसी एंड टीबीआई अप्रूव्ड इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। मैंने जो लिंक दिया है वहाँ पे, बट आपको एक लेटर, ऑथोराइज लेटर चाहिए होगा फ्रॉम द टीबीआई और एआईसी, कि जहाँ पे आप इंक्यूबेटेड हो एंड दे आर, मतलब जो भी इंक्यूबेटर है वो आपको एक एनओसी लेटर देता है कि यस यू कैन अप्लाई अंडर द असीम स्कीम एज एन, you can choose TBI, V as in TBI. Okay, so I just would like to add one thing कि यहाँ पर I am representing the EDIA, and Cradle is also one of the technology business incubator supported by Department of Science and Technology in 2016. So if any similar fall startup or any innovator can apply under ASIM through us. That's all from my end. Thanks all the participants for keep listening. Thank you all. Thank you Saurashtra University IIC team for giving me this opportunity. And thanks. I'm open for this question answer if you have any question. Thanks, sir. Participants are requested to write down the question if they have any in the chat box, or you can unmute yourself, ask the question if you have any. So I think I can see some question in chat box. SSIP approved for university. Yes, SSIP as in you as an SSI, you as an university or you as an institute, you can take the benefit of SSIP. Currently SSIP 2.0 का applications open है. You can just go to the SSIP website and download the format which is available on the scrolling bar, and you can apply the SSIP. And if you are student, you can avail the benefit from the university or institute directly. The second question is, from where could we get the application form to apply? Subra Ruparel, you kindly elaborate that for which assistant or for which scheme you need the application form, for which grant. Then and then only sir will reply you perfectly. Another is, can you please share the slide of the second scheme for assistant? I think that is a nodal institute. Yeah, so for the Nodal Institute, if the question is particularly for the Nodal Institute, Startup Gujarat की एक वेबसाइट है startup.gujarat.gov.in, वहाँ पे आपको जाना है. Just log in with your email ID and OTP received on the email ID. वहाँ पे आपको 3 टैब मिलेंगे. The first one is your profile, the second one is your company's profile or a proposed company profile, and third one is about the some documents and the verification detail about your Aadhaar card number or PAN card number, and you need to submit. Then you will get one application form on your on the top of your web page, and where you can click just on the apply now, select the schemes, seed funding scheme, and you will get the form. Just fill out the form with your idea, and वहाँ पे लास्ट में आप सबमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा आपको. Another question is there any particular time frame for applying to the schemes? So for that also you need to mention that for which assistance we are talking about. Basically,
Sir, you can give an overall about each and every scheme. That is there any timeline? Uh, so, uh, so I have mentioned about 5 schemes. जहाँ पे for the MSME, you need to apply between certain time period where the MSME will open the call for application or the hackathon. Apart from that, for all the scheme SSIP and Startup Gujarat, SISFS, ASIM, you can apply at any time. You need to just go at their particular scheme website. You need to apply. I can see one question from Dharmesh that this SSIP 2.0 available at present. So as in, so if you are student or if you are innovator, the scheme is not available at moment. Uh, अभी इंस्टीट्यूट लेवल पे काम चल रहा है, पॉलिसी लॉन्च हो चुकी है, MOU एंड फर्दर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है, जो नए यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट को अप्लाई करवाना है उसका अभी प्रोसेस चल रहा है. आई एम नॉट श्योर बट इन जुलाई और अगस्त as an student or as an innovator you will avail the grant, you can take the benefit. Yes, do any other participants have any questions? You can unmute yourself and ask the question. Okay. Should I wait till August? Yeah, for SSIP, I'm not sure, but August tak, most probably any student or innovator will can get the benefit. If you are a university or institute, the call, the application is open. So if you want to apply if you apply for your institute or university. Yes. Thank you very much, sir, for providing valuable information regarding how to start up, how to innovate, and what are the various government supports for an entrepreneur to become a startup. It was a very informative and interesting session. I hope all the participants enjoyed the deliverables given by Dr. Dhruv, Mr. Dhruv Patel, sir. We thank you. So, we again thank you, sir, for sparing your valuable time and providing these insights to the participants. Yes, so today was the first day of our Impact Lecture series. So 2 sessions have been delivered. The another 2 sessions will be on 30th June 2020. On that day also, we'll be having 2 sessions. Right? I hope you all enjoy these sessions, and thank you very much, sir, on behalf of Saurashtra University and IIC. Thank you. Thank you, Park Bhai, and thank you all the participants. Thank you all the team of IIC Saurashtra University. If you have any question, you can forward to the Saurashtra University team, and we'll look forward. One more thing I would like to inform you that the feedback link will be shared to all the participants on your mail, and on filling that feedback link, you will receive the e-certificates for the event you have attended. Thank you all, and I am ending this meeting.